پاکستان پیپلز پارٹی 97ویں یوم تاسیس آج منایا جا رہا ہے۔ پارٹی نے گزشتہ 97 برسوں کے دوران ملک کی سیاسی تاریخ کے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ کئی بار اقتدار میں رہی پارٹی کے بانی کو پھانسی دی گئی، چیئرپرسن کو شہید کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی سیاسی تاریخ میں آج بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس پر عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کو 57 سال ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1967 میں پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ پی پی کی تاریخ قربانی کی داستانوں سے مزین۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 65 کی جنگ میں صدر ایوب سے اختلافات پر وزارت خارجہ سے استعفیٰ دیا۔ انہوں نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا مشن شروع کیا۔ 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی قائم کر دی گئی۔ 1970 کے انتخابات میں اس نئی نویلی جماعت نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ 1972 سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ 90,000 جنگی قیدیوں کی واپسی، ملک کو پہلا متفقہ آئین دیا، ملک کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا اور اسٹیل ملز بھی قائم کی۔ پیپلز پارٹی کے یہ جو 57 سال ہیں اس میں ذکر کرو پیپلز پارٹی کا، اس کا ایک جو بانی تھا، اس کو پارٹی کو چلانے والی پھر آگے بڑھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، جس نے مارشلائی حکومت کو للکارا اور ملکارا تو اپنی تکالیف بھی بول گئی، اور وہ نبر و آزما ہوئی نہ صرف ایک عامر سے لیکن دوسرے عامر سے بھی، اور یہ لگاتار ایک لیگیسی چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی۔ 1977 میں حالات تبدیل ہوئے۔ 5 جولائی کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا، حکومت کا خاتمہ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 4 اپریل 1989 کو بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پیپلز پارٹی کی باغ دوڑ بیگم نصرت بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو نے سنبھال لی۔ ایم آر ڈی کی تحریک شروع کی اور پھر 1988 کو عام انتخابات میں ایک بار پھر بھرپور کامیابی حاصل کر لی۔ بے نظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں۔ 1972 سے لے کر اب تک متعدد بار ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی رہی۔ نفرت جرم سے مجرم سے نہیں، سینٹرل جیل میں سندھ کی ثقافت کے رنگ بکھیرے گئے۔ قیدی سندھ گیتوں پر جھوم اٹھے، قوالی کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا۔ قیدی شاندار تقریب کے انعقاد پر جیل انتظامیہ کے مشکور ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے اسامہ ملک قیدیوں کے ہمراہ موجود ہیں، مزید انہی سے تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسامہ بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی سینٹرل جیل میں سندھی کلچر ڈے کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر تمام قیدی جو ہے اس وقت موجود ہیں، تمام کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس وقت کچھ قیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے آج کلچر ڈے کا انعقاد کیا گیا؟ سب سے پہلے آپ میڈیا والوں کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ، اور دوسری بات جیل انتظامیہ کا شکر گزار ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے یہ بتائیں۔ ماشاءاللہ یہ ماحول بہت اچھا ہے جیل انتظامیہ کی طرف سے، اور ہماری یہ ثقافت ہے 5000 سال پرانی ثقافت تہذیب کے مالک ہے، جو یہ ہر سال کچھ اور بھی قیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جانتے بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے کو اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جیل میں یہ محسوس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم جیل میں، ہمارے کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم باہر ہیں۔ ہم یہ جو ہے نا قوم کوئی بھی مطلب کوئی مہاجر ہے یا پنجابی کوئی نہیں، ہم جو ہے سب سندھ میں جو بھی رہنے والے ہیں کلچر منا رہے ہیں، سب ایک ہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر۔ آپ بھی بتائیے گا کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ہمارا تو بہت اچھا فیل ہو رہا ہے۔ 13واں سال ہے میرے کو جیل کے اندر ایسی ثقافت سندھ کی بناتے آئے۔ میں خود اردو اسپیک ہوں، لیکن یہاں پہ سارے جو ہے سندھ کی ثقافت بناتے ہیں، بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، بھائی چارے کی طرح، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جیل کے اندر ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ دیکھیں قیدی موجود تھے، بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ 13 سالوں سے جو ہے ایک جیل اسی جیل میں موجود ہیں، اور ہر سال جو ہے سندھی ثقافت کا دن منایا جاتا ہے۔ آج بھی اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قیدی جو ہے وہ بہت خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ ہم بالکل آزاد ہیں اور کراچی کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ جی قیدیوں کو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آزاد ہیں۔ سینٹرل جیل میں سندھ کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے، قیدی سندھی گیتوں پر جھوم رہے ہیں اور قوالی کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ قیدی شاندار تقریب کے انعقاد پر جیل انتظامیہ کے مشکور ہیں۔ پولیس کے جوان بھی قیدیوں کے ساتھ رقص کرتے رہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئینی بینچ کے قیام کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے نیا روسٹر جاری کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کراچی پرنسپل سیٹ پر 2-4 رکنی بینچز کیسز کی سماعت کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز بتائیے گا۔
बिल्कुल देखें जी, आइनी बेंच के क़याम के बाद सिंध हाई कोर्ट ने रेगुलर बेंच का नया रोस्टर जो है वो जारी कर दिया है। ये रोस्टर जो है 2 दिसंबर के बाद इस रोस्टर के मुताबिक बेंचेस जो हैं मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। इसमें आइनी बेंच के बाद सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 4 2 रुकनी बेंचेस का जो है वो क़याम कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ 6 जो हैं वो सिंगल रुकनी बेंचेस जो हैं मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। इसमें 2 रुकनी बेंचेस में चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जहां पर चीफ जस्टिस के हमरा जस्टिस जो जवाद अकबर सरवाना शामिल होंगे, जहां पर पेमरा, ओगरा समेत दीगर अथॉरिटी से मुतल्लिक केसेस की समाअत होगी। इसी तरह जस्टिस सलाउद्दीन पावर की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच है वो क्रिमिनल अपीलें और सज़ा के खिलाफ दायर अपीलें, नेब के खिलाफ केसेस की समाअत करेंगे। इसी तरह जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में इंक्रोचमेंट, KDA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, नादरा समेत दीगर अथॉरिटी से मुतल्लिक केसेस की समाअत करेंगे, जबकि जस्टिस मोहम्मद जुनैद की सरबराही में टैक्स, कस्टम और दीगर केसेस की समाअत होगी। इसमें सिंध हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 6 सिंगल बेंच भी जो हैं मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी तालीम जाहिद अली अब्बासी ने नोटिस लेकर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी है। कमेटी को 15 रोज में तहकीकात मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दे दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। स्कूल तालीम के मेडिकल सेक्शन में अंधेर नगरी चौपट राज, जाली तिब्बी बिलों की मद में करोड़ों की मुबीना करप्शन का स्कैंडल। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी का नोटिस, तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी एडमिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इमदाद अब्बासी सरबराह बना दिए गए। महकमा स्कूल तालीम के एडिशनल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरी खुसूसी सेल मेंबर्स मुकर्रर। कमेटी तिब्बी बिलों का जायजा लेगी। 15 रोज में रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को पेश करेगी। सेक्शन ऑफिसर स्कूल तालीम गुलजार पर बेज़ाब्तगियों में मुलविस होने का शुबा, तहकीकात से कबल इलाज की गर्ज से छुट्टियों पर चले गए। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। महकमा स्कूल तालीम के मेडिकल सेक्शन में अंधेर नगरी चौपट राज, मेडिकल बिलों की मद में मेगा करप्शन, साबिक सेक्शन अफसर मेडिकल गुलजार और दीगर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। तहकीकात जारी हैं, 15 रोज के अंदर रिपोर्ट मुरतब कर दी जाएगी। जी हाँ, महकमा स्कूल तालीम के मेडिकल सेक्शन में अंधेर नगरी और चौपट राज है। मेडिकल बिलों की मद में मेगा करप्शन सामने आ चुके हैं। साबिक सेक्शन अफसर मेडिकल गुलजार और दीगर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस पर तहकीकात जारी है, 15 रोज के अंदर रिपोर्ट मुरतब कर दी जाएंगी, ये भी कहा गया है। अंधेर नगरी चौपट राज है। महकमा स्कूल तालीम में मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ सामने आया है। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। बताइएगा आज़ाद। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम में मुबैना तौर पर मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन के स्कैंडल की बाज़ाब्ता तौर पर महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने और इसके अलावा वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम की जानब से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम की तहकीकात के साथ साथ ये दोनों इदारों ने जो है महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर मेडिकल जो रहे हैं गुलजार अहमद कुम्भार, उन समेत दीगर अफसरान का गिरद घेरा तंग कर दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम के डिप्टी सेक्रेटरी खुसूसी सेल की जानब से जो है एक ख़त, दो अलग ख़त जो हैं चेयरमैन जो है इंक्वायरी एंटी करप्शन और इसके अलावा चेयरमैन वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी जो इंस्पेक्शन टीम उन दोनों को अरसाल कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि इस मामले की महकमा स्कूल तालीम की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी, जिसका सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बराए स्कूल तालीम एडमिन है सैयद इमदाद अली शाह, उनकी निगरानी में 4 रुकनी कमेटी तहकीकात कर रही है और 15 रोज़ के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी के सुपर्द कर दी जाएगी, जिसके बाद जो ज़िम्मेदार अफसर जो मुलाजमिन हैं या जो मुस्तहिक़ीन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के अख्तियार जो है सेक्रेटरी स्कूल तालीम के पास हैं। वो जैसे फैसला करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन महकमा स्कूल तालीम की जानब से इस मामले की तहकीकात कर दी जा रही है। जैसे तहकीकात मुकम्मल होगी तो महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन और वज़ीर-ए-आला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम को भी
आगाह कर दिया जाएगा। जबकि इससे कबल जो है जो सेक्शन अफसर मेडिकल हैं गुलजार अहमद कुंबर साहब, वो तो इलाज के गर्ज से छुट्टियां लेकर चले गए, लेकिन इस वक्त सेक्शन अफसर मेडिकल मिठा खान है, उनको तैनात कर दिया। जिसके बाद ये भांडा उस वक्त फोड़ा गया जब नए सेक्शन अफसर तैनात हुए तो उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो इस महकमा स्कूल तालीम के रिकॉर्ड में कई ऐसे मेडिकल के बिल थे वो जाली थे, जिसके बाद उनमें करोड़ों रुपए की करप्शन का स्कैंडल सामने आया, जिसकी कल जो है महकमा स्कूल तालीम ने तहकीकात शुरू कर दी है। और आज जो है महकमा स्कूल तालीम ने वज़ीर इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन को भी आगाह कर दिया कि इस मामले की महकमा स्कूल तालीम की जानब से तहकीकात जारी है। बाकी जो दोनों इदारे हैं इनकी जानब से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। अब ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं ये तहकीकाती कमेटी वाज़ेह करेगी, लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम के अंदर जो मेडिकल बिलों की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है उसकी तहकीकात 3 इदारों की जानब से कर दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नूरियो। पसंद की शादी करवाने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी। रिमार्क्स ये कि जमहूरी मुल्क में लड़की या लड़का बालिग होने पर पसंद की शादी कर सकता है। पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। तफसीलात मुमताज़ जमाली से हासिल करेंगे। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची की जानिब से पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में रिमार्क किए कि बुनियादी तौर पर ये एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है। जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो वो पसंद की शादी कर सकता है। अगर वालिदैन ज़ात और मतल्लक की वजह से शादी के लिए राजी नहीं होते, वालिदैन लड़के या लड़की का समाजी राब्ता ख़त्म कर सकते हैं, उनको हिरासत करने या तशद्दुद नहीं कर सकते। अदालती फैसले के मुताबिक पुलिस और इंतजामी हुकाम को हिदायत जारी की जाती है कि पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का कोई तनाज़ा है तो उसे मुतल्लिक़ा अदालत में हल किया जाए। अदालत ने गोत्री के रिहायशी जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पसंद की शादी करने वाले शाह ज़मान के खिलाफ दर्ज मुकदमा की खिलाफ करने का भी हिदायत दे दी है। अदालत ने पसंद की शादी करने वाले शाह ज़मान और लड़की महवश के अहले खाने को 5-5 लाख रुपए मतलब की जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये रिमार्क किया कि अगर लड़की अगर चाहे तो वालिदैन से मिल सकती है। नूरुद्दीन और सिदरा ने कसिम के इलाके में पसंद की शादी की है। पुलिस के मुताबिक नूरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा 20 क्लास कर दिए गए हैं। जैकाबाद के पसंद की शादी करने वाले जोड़े राबिया और हबीबुर रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने राबिया और हबीबुर रहमान को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। पसंद की शादी करवाने वाले 3 जोड़ों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी। रिमार्क्स ये कि जमहूरी मुल्क में लड़की या लड़का बालिग होने पर पसंद की शादी कर सकता है। पुलिस और इंतजामिया पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। तफसीलात मुमताज़ जमाली से हासिल करेंगे। मुमताज़ बताइएगा। बिल्कुल, देखें कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची की जानिब से पसंद की शादी करने वाले 3 जोड़ों के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में रिमार्क किए कि बुनियादी तौर पर ये एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है। जब कोई लड़का या लड़की बालिग हो जाए तो वो पसंद की शादी कर सकता है। अगर वालिदैन ज़ात और मतल्लक की वजह से शादी के लिए राजी नहीं होते, वालिदैन लड़के या लड़की का समाजी राब्ता ख़त्म कर सकते हैं, उनको हिरासत करने या तशद्दुद नहीं कर सकते। अदालती फैसले के मुताबिक पुलिस और इंतजामी हुकाम को हिदायत जारी की जाती है कि पसंद की शादी करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर फरीक़ैन के दरमियान लड़की की उम्र का कोई तनाज़ा है तो उसे मुतल्लिक़ा अदालत में हल किया जाए। अदालत ने गोत्री के रिहायशी जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पसंद की शादी करने वाले शाह ज़मान के खिलाफ दर्ज मुकदमा की खिलाफ करने का भी हिदायत दे दी है। अदालत ने पसंद की शादी करने वाले शाह ज़मान और लड़की महवश के अहले खाने को 5-5 लाख रुपए मतलब की जमा कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने ये रिमार्क किया कि अगर लड़की अगर चाहे तो वालिदैन से मिल सकती है। नूरुद्दीन और सिदरा ने कसिम के इलाके में पसंद की शादी की है। पुलिस के मुताबिक नूरुद्दीन के खिलाफ मुकदमा 20 क्लास कर दिए गए हैं। जैकाबाद के पसंद की शादी करने वाले जोड़े राबिया और हबीबुर रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने राबिया और हबीबुर रहमान को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैर कानूनी भर्तियों की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन मुतहरिक हो चुकी है। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली सैयद एजाजुल हक की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन इन एक्शन है। टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर अकाउंट्स ऑफिसर्स को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गैर कानूनी भर्तियों की रोकथाम के लिए
एंटी करप्शन इस वक्त मुतहरिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, गैर कानूनी भर्तियों की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन जो है वो काफी मुतहरिक दिखाई देती है। एनकेएम पाकिस्तान के रुकने से असेंबली सैयद एजाजुल हक की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन में बाकायदा तौर पर तहकीकात का फैसला कर लिया है। टाउन चेयरमैन औरंगी टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर अकाउंट्स ऑफिसर को जो है बाकायदा तौर पर एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 3 दिसंबर तक औरंगी टाउन के मुलाजिम नौशाद आलम, आसिफ और शाफी मोहम्मद सिद्दीकी से मुतालिक जो है तफसीलात फराहम की जाए। इस एंटी करप्शन की जानिब से ब्रांच मैनेजर सिंध बैंक नॉर्थ इस्लामाबाद को भी जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में ये कहा गया है कि औरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खोले गए अकाउंट की जो है वो तफसीलात फराहम की जाए। एनकेएम पाकिस्तान के रुकने से असेंबली सैयद एजाजुल हक की जानिब से 4 नवंबर को एंटी करप्शन को औरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक जो है शिकायत इरसाल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि तमाम तर मामले पर जो है वो तहकीकात की जाए, जबकि गैर कानूनी भर्तियां जो एंटी करप्शन में हो रही है, जो चल रही हैं औरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसका जो है वो नोटिस किया जाए। इस सिलसिले में 3 नाम भी जो है वो रुकने से असेंबली की जानिब से एंटी करप्शन को जो है दिए गए थे, जिस पर एंटी करप्शन ने नोटिस लेते हुए जो है टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगी टाउन से तफसीलात जो है वो तलब कर ली है। जी, हमारे साथ ही शुएब मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया रुकन सिंध असेंबली सैयद एजाजुल हक ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आपने रुकन सिंध असेंबली सैयद एजाजुल हक ने दरख्वास्त जो है एंटी करप्शन में दी थी, जिस पर एक्शन भी लिया गया है, लेकिन इस पर ताख़ीर की क्या वजह बताई जा रही है? हेलो सर, आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो बताइएगा कि इस पर एक्शन इतनी ताख़ीर से क्यों लिया गया है? देखिए, यहाँ पर बड़े अफसोस से ही कहना पड़ता है कि एक तरफ से तो सिंध जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है, और सिंध के जो इदारे हैं मुख्तलिफ, जहाँ पर अवामी फलाह बहबूद के काम होने चाहिए, वहाँ पर करप्शन का गढ़ बना हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि सिंध में करप्शन बेशुमार हो रहा है इस वक्त, लेकिन इसके बावजूद एंटी करप्शन वो इदारा है जिसको खुद एक्शन लेना चाहिए अपने तहत, लेकिन वो जब एक्शन तो खुद नहीं ले रहा, लेकिन जब अवामी नुमाइंदे और लोगों के कहने पर एप्लीकेशन दी जाती है कि आप इस करप्शन के खिलाफ एक्शन लें, तो उस पर महीनों लग जाता है। आप देखेंगे कि मैंने अपने प्रूफ के साथ कि औरंगी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गैर कानूनी भर्तियां जारी थी, तो उसके ऊपर मैंने अपने लेटर हेड के ऊपर चेयरमैन एंटी करप्शन को लेटर लिखा कि भाई इसको रोकें आप, ये लोगों के साथ नाजायज हो रहा है। कराची शहर में आज जब लोग फूड पांडा पे काम कर रहे हैं, लोग जब दूसरे मजदूरी पे लगे हुए हैं, पढ़े लिखे नौजवान, वहां पर क्या कर रहे हैं, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और केएमसी 2 नंबर भर्तियों में मुलविस है, 2 नंबर भर्तियां की जा रही हैं, उसको आप रोकें। आप देखेंगे वो लेटर 4 नवंबर को दी जाती है, और आज 25, 26, 30 नवंबर हो गया है, और आज जाके इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है, एक नोटिस भेजा जाता है कंसर्न लोगों को। बहुत बड़ा अलमिया है, और इसके ऊपर भी बारहा राब्ता करने के बावजूद ये नोटिस जारी किए गए हैं, अदरवाइज हो नहीं रहा था। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये कह दूं कि ये चोर बाजारी और 2 नंबरी नहीं चलेगी। जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं, जो लोग कराची के नौजवानों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं, जो लोग औरंगी टाउन के नौजवानों की नौकरियां खा रहे हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। इसके ऊपर ना सिर्फ एंटी करप्शन, अगर इदारे प्रॉपर काम नहीं करेंगे, इदारे अगर आकर इसका एहतसाब नहीं करेंगे, तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और बहुत जल्द खटखटाएंगे, और इसके ऊपर हम भरपूर कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और औरंगी टाउन के नौजवानों का हक, कराची शहर के नौजवानों का हक हम लेकर रहेंगे। किसी टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एमसी के हवाले नहीं करेंगे हम कराची वालों के हुकूक, औरंगी टाउन के नौजवानों के हुकूक को। हम किसी टाउन चेयरमैन के जुल्म और सितम के आगे जो है वो औरंगी टाउन के नौजवानों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इसका हम मुहासबा करेंगे इंशाअल्लाह, और जहां हमें जाना पड़े अपने लोगों के, अपने नौजवानों के हुकूक के लिए, हम वहां पर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप ये एंटी करप्शन का इदारा या दूसरे इदारे इस ख्वाब गफलत पे ना रहे कि हम इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेंगे। एंटी करप्शन ने इसके ऊपर नोटिस भेजा है, बहुत अच्छी बात है, लेट आए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इसके ऊपर अगर प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई, जो कसूरवार है उनको सजा नहीं मिली, और ये जो गैर कानूनी भर्तियां हैं इनका अगर खात्मा नहीं हुआ, तो इनको अगला जवाब सिंध हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जवाब में मिलेगा इंशाअल्लाह ताला।